जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? Hello everyone, my name is Anurag Singh. Welcome to Pahuja Law Academy, and this is a demo lecture for the Code of Civil Procedure. Right? Now, the first thing you need to understand about CPC is the importance of CPC. Right? देखो, laws are divided into criminal and civil. Right? Now, under criminal law, the subjects that we study are limited to the BNS and the BNSS. ठीक है, although there are also other minor laws like POCSO वगैरह, but याद रखना कि वो चीज हम लोग हर जगह नहीं पढ़ते. बट क्रिमिनल में हम लोग सब्जेक्ट बहुत लिमिटेड पढ़ते हैं. बट सिविल जो है, दिस इज मच मोर ब्रॉडर. सिविल कैन बी कॉन्ट्रैक्ट और द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और इट कैन बी हिंदू लॉज, और इट कैन बी मुस्लिम लॉज, और इट कैन बी लेबर लॉ, और इट कैन बी कंपनी लॉ, or it can be tort, it can be the Sale of Goods Act, it can be partnership, right? SRA, registration, limitation, ये सारे हमारे होते हैं civil laws. ठीक है, and you can see that civil is much more broader than criminal. तो ये कहना हम अगर हम लोग ये कहें कि 90% laws हमारे civil होते हैं, so that's not an exaggeration. ठीक है, तो we can clearly say that 90% लॉज हमारे क्या होते हैं? सिविल होते हैं. ठीक है, एंड टू रेगुलेट दिस 90% लॉज देयर इज ओनली वन कोड, विच इज द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. दिस इज द सीपीसी. ठीक है, तो इमीडिएटली यू कैन सी द इंपॉर्टेंस ऑफ सीपीसी. कि CPC regulates 90% of the laws. That is why it is very important for you to understand CPC, right? Now, this is the importance of CPC from an understanding point of view. अगर आपको law समझना है, so you must be thorough with the CPC. Now, from an exam point of view, अगर हम लोग एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, देखो, at the prelim stage, you will get somewhere between 15 to 20 questions from CPC. रिसेंटली हमारे जो एग्जाम्स हुए हैं, चाहे हिमाचल के हो चाहे राजस्थान के हो, यू गेट एम्पल क्वेश्चंस फ्रॉम सीपीसी, राइट? तो मिनिमम ऑफ 15 to 20 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सीपीसी से आएंगे ही आएंगे. ठीक है, नाउ एट द मेन स्टेज, देखो मेंस में क्या होता है, मेनी स्टेट्स दे हैव अ सेपरेट पेपर फॉर प्रोसीजरल लॉ. तो प्रोसीजरल लॉ का सेपरेट पेपर होगा, एंड इन दिस यू गेट क्वेश्चंस फ्रॉम सीपीसी, the BNSS and the BSA, that is the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, the BSA, right? So you can see even at the main stage, 1/3 weightage is still given to the CPC, right? Now, अब देखो यहां ध्यान देना, not only this, in some states you will have to write the plaint, you will have to write the WS, and in some cases judgment writing is also going to be there. Not every state has this. Some states do, like MP, Rajasthan, Chhattisgarh, and sometimes UP also. ये यहाँ पर आपको प्लेन WS और जजमेंट राइटिंग भी करनी पड़ सकती है. अब याद रखना कि प्लेन तभी लिख पाओगे when you are thorough with CPC, WS भी तभी लिख पाओगे when you are thorough with CPC, and same is the case with जजमेंट राइटिंग की वो भी तभी लिख पाएगी when you are thorough with the CPC. So CPC is not only important from an understanding point of view because it regulates 90% of the laws. It is also important from an exam point of view because prelims and mains you will get ample questions from the Code of Civil Procedure. ठीक है, all of this just to make you understand कि CPC is a very important subject. ठीक है, चाहे आप अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, राइट? नाउ सीपीसी की इंपॉर्टेंस समझना इजी होता है, बट टू अंडरस्टैंड सीपीसी इट कैन बी रियली डिफिकल्ट इफ यू डोंट नो द प्रॉपर मेथड ऑफ studying CPC. So to understand CPC, the first thing you have to do is to divide CPC into two parts. ठीक है, divide CPC into two parts. Now what are these two parts? The first part is the sections and the other part is the orders. So CPC को हम लोग किस में डिवाइड कर लेते हैं? सेक्शंस में और ऑर्डर्स में. ठीक है, नाउ व्हाट आर सेक्शंस एंड व्हाट आर ऑर्डर्स? देखो, सेक्शंस गिव यू द जनरल प्रिंसिपल्स और
the broad framework, right? But what they do not do is give you the details. There will be no details in the sections. ठीक है? Sections क्या करते हैं? They only give you the principles of the framework, no details. The details are always going to be in the orders because these are deemed as the real elaboration of proceedings. ठीक है? And these are the provisions which are going to contain the details. ठीक है? So याद रखना कि CPC को समझने के लिए the first thing we do, divide CPC into sections and orders. Sections give you the principles or the framework, but not the details. The details will always be in the orders. Okay? Now, there are 158 sections in CPC and there are 51 orders in CPC. ठीक है? चलो आप देखो नेक्स्ट चीज, और इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना. फॉर ऑलमोस्ट एवरी इंपॉर्टेंट सेक्शन there will be a corresponding order. For almost every important section there will be a corresponding order. So the question was, what is the proper way to study CPC? The proper way is you study the section and then directly go to the corresponding order. ठीक है? That is the proper way to study CPC. Section पढ़ो, सीधा उसके corresponding order पे चले जाओ. That is the proper way. Do not study CPC section wise or order wise. That is not the proper way of studying CPC. कैसे पढ़ते हैं? सेक्शन पढ़ो और सीधा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर पे चले जाओ. क्यों? क्योंकि सेक्शन क्या करता है? सेक्शन गिव्स यू द प्रिंसिपल्स ऑफ द फ्रेमवर्क बट नॉट द डिटेल्स. द डिटेल्स विल बी इन द ऑर्डर्स. ठीक है? सो इसीलिए हम लोगों को कभी भी सीपीसी को सेक्शन वाइज या ऑर्डर वाइज नहीं पढ़ना चाहिए. सेक्शन पढ़ेंगे और सीधा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर पे चले जाएंगे. दैट इज द प्रॉपर वे ऑफ स्टडिंग सीपीसी. ठीक है? नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स वेयर अ सेक्शन हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर. ठीक है? सपोज कि अगर हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स, इसके लिए हमें जो सेक्शन चाहिए दैट इज सेक्शन 26 एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर इज ऑर्डर 4. सेक्शन 26 पढ़ने के बाद 27 पे नहीं जाना, 26 पढ़ने के बाद सीधा ऑर्डर 4 पे जाना है. ठीक है? सेक्शन 26 इज गोइंग टू गिव अस द प्रिंसिपल्स ऑफ द फ्रेमवर्क. द डिटेल्स विल बी इन ऑर्डर 4. ठीक है? आप 27 पे क्यों नहीं गए? बिकॉज सेक्शन 27 to 32 दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक. दिस इज समन्स और इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर है दैट इज ऑर्डर 5. ठीक है? सो यहां पर भी सेक्शंस पढ़ेंगे और सीधा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर पे चले जाएंगे. अगेन कि ये सेक्शंस के बाद 33 पर क्यों नहीं गए, 32 के बाद 33 पे क्यों नहीं गए? बिकॉज सेक्शन 33 इज अ डिफरेंट टॉपिक. दिस इज जजमेंट एंड डिक्री and for this the corresponding order is R22 sorry R20. ठीक है? ऐसे ही आप देखो, अगर मान लो कि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉस्ट्स का, so for cost we need section 35, 35A and 35B also and the corresponding order is R20A. अगर मान लो कि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं एग्जीक्यूशन का, so for execution you need sections 36 to 74 and the corresponding order is R21. ऐसे अगर मान लो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं कमीशंस का, so for commissions we need sections 75 to 78 and the corresponding order is R26. अगर ऐसे मान लो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट सूट्स का, so for government suits we need section 79 to 82 and the corresponding order is R27. ठीक है? यहां पर भी देख पाओगे कि 74 के बाद 75 पर नहीं गए, 74 के बाद सीधा R21 पे चले जाना है क्योंकि 75 to 78 हमारा एक डिफरेंट टॉपिक है. सिमिलरली 78 के बाद 79 पे नहीं आए, 78 के बाद सीधा R26 पे चले गए बिकॉज 79 इज अ डिफरेंट टॉपिक. ठीक है? सेम लॉजिक जो है वो बार बार हमारा आता है.
अब देखो, there are many other examples. I've just given you a few examples. Now suppose हम लोग first appeals का टॉपिक पढ़ रहे हैं. So for first appeals you need sections 96 to 99 and the corresponding order is order 41. Similarly, second appeals is section 100 to 103 and the corresponding order is order 42. अगर मान लो हम लोग पढ़ रहे हैं appealable orders, so for appealable orders we need section 104 and the corresponding order is order 43. अगर मान लो हम लोग पढ़ रहे हैं appeals to Supreme Court, ठीक है, इसके लिए हमें चाहिए section 109 to 112 and the corresponding order is order 45. अगर मान लो हम लोग पढ़ रहे हैं रेफरेंस, सो फॉर रेफरेंस वी नीड सेक्शन 113 एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर इज ऑर्डर 46. अगर हम लोग पढ़ रहे हैं रिव्यू, तो फॉर रिव्यू वी नीड सेक्शन 114 एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर इज ऑर्डर 47. ठीक है, देयर आर मेनी मोर एग्जांपल्स. जैसे अगर मान लो हम लोग बात करें टेम्परेरी इंजंक्शन की, so for temporary injunction the section is section 94C and the corresponding order is order 39, rule 1 to 5. ठीक है, ऐसे अगर मान लो हम लोग रिसीवर की बात करें, रिसीवर इज सेक्शन 94D and the corresponding order is order 40. ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स की, सेक्शन 94E एंड ऑर्डर 39 का रूल 6 to 10. ठीक है, अगर इंटरप्रेटर सूट्स की बात करें, सेक्शन 88 ऑर्डर 35. सेटलमेंट आउटसाइड द कोर्ट, दैट इज सेक्शन 89 एंड ऑर्डर 10 का रूल 1, 1A एंड 1B, 1C. ठीक है, द पॉइंट इज देयर आर मेनी सेक्शंस which will have a corresponding order. हम लोगों ने यहां पर बस कुछ एग्जांपल्स करके देखे हैं जहां पर कि सेक्शन का एक कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर होता है. ठीक है, तो हमारा पॉइंट क्या था कि सीपीसी को कैसे पढ़ना है, कभी भी सेक्शन वाइज या ऑर्डर वाइज नहीं पढ़ना. कैसे पढ़ना है, सेक्शन पढ़ो और सीधा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर पे चले जाओ. एंड व्हाई डू वी डू दिस? बिकॉज sections give us the principles of the framework but not the details. The details are always in the orders. ठीक है, so this is the first thing you should keep in mind while studying CPC. ठीक है, now देखो, section order correspondence is a very good thing to do, but that does not mean that you can pick up any random section and go to the corresponding order. नहीं, ऐसा नहीं करना. ठीक है, मतलब अगर हम लोग सीपीसी स्टार्ट करते हैं, लेट्स से अभी तुरंत स्टार्ट करते हैं, आई कैन नॉट जस्ट स्टार्ट विथ एग्जीक्यूशन. ऐसा नहीं कर सकता मैं कि मैं सीधे तुम लोग को एग्जीक्यूशन पढ़ाने लगूं, या सीधे तुम लोग को अपील्स पढ़ाने लगूं, या सीधे गवर्नमेंट सूट पढ़ाने लगूं. नहीं, कि ये सेक्शन है और ये कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर है. देखो, वो चीज अच्छी है बट उसको रैंडम नहीं रखना कि जब मनाया जो मनाया सेक्शन उठा लिया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर पे चले गए. नहीं, व्हाट यू नीड टू डू, you need to arrange the whole of CPC on a question so that it makes sense. ठीक है, ऐसे अरेंज करना है पूरी सीपीसी को ताकि उसकी सेंस बने. ठीक है, देखो क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं एक ऐसे, हाउ डज एन ऑर्डिनरी सूट रन? हाउ डज एन ऑर्डिनरी सूट रन? ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं, और ये कि एक सूट कैसे स्टार्ट होता है और कैसे चलता है और कैसे खत्म होता है, वो रन कैसे करता है बेसिकली. राइट, सो कैसे स्टार्ट होता है सूट? सबसे पहले प्लेंटिफ आता है और अपनी प्लेंट फाइल करता है. ठीक है, प्लेंटिफ आता है और अपनी प्लेंट फाइल करता है. दैट्स हाउ यू स्टार्ट अ सूट. ठीक है, सेक्शन 26(1) कहता है एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट और इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब. ठीक है, तो कैसे स्टार्ट होती है सूट? बाय द फाइलिंग ऑफ द प्लेंट. नाउ जब प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट फाइल कर दी है तो वहां पर सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप इज समन्स. ठीक है, याद रखना, इंस्टिंक्ट हमारी कहती है कि डिफेंडेंट जो है अपना डब्ल्यूएस फाइल करेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता. डिफेंडेंट नीड्स टू बी इन्फॉर्म्ड कि आपके अगेंस्ट एक सूट फाइल हुआ है. ठीक है, वो सूट जो फाइल हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन कैसे देते हैं? बाय सर्विंग समन्स. ठीक है, राइट. अब जब समन्स सर्व हो गए हैं,
then the defendant appears and he files his reply, which is known as the written statement. ठीक है, तो रिटन स्टेटमेंट क्या होता है? प्लेंटिफ ने जो प्लेन में एलिगेशंस लगाए हैं उनका रिप्लाई होता है रिटन स्टेटमेंट में. ठीक है, नाउ आफ्टर द रिटन स्टेटमेंट हैज बीन फाइल्ड, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज appearance and examination, and this is actually an oral examination. देखो, जब दोनों पार्टीज ने अपने रिटन सबमिशंस कर दिए हैं उसके बाद कोर्ट बोलती है दोनों पार्टी से कि अपीयर करो, आई नीड टू आस्क सम क्वेश्चंस. ठीक है, एंड ओरल एग्जामिनेशन नीड्स टू बी कंडक्टेड. ठीक है, डोंट कंफ्यूज दिस विथ एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जाम एंड री एग्जाम. नहीं, वो तो ट्रायल का पार्ट है बेटा. अभी तो ट्रायल जो हियरिंग है वो स्टार्ट नहीं हुई है अभी तक. ठीक है, यहां पर ये एग्जामिनेशन जो है ये कोर्ट करती है. कोर्ट एग्जामिन्स द पार्टीज, और यहां पर पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन इज अ लॉट डिफरेंट देन द वन जो हम लोग पढ़ते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ वगैरह या क्रॉस एग्जाम वगैरह. पर्पस क्या है यहां पर एग्जामिनेशन का? कोर्ट वांट्स टू अंडरस्टैंड द रियल नेचर ऑफ द डिस्प्यूट. ठीक है, क्योंकि रिटन सबमिशंस में कई बार पार्टीज ने जो लैंग्वेज यूज की होती है, द लैंग्वेज इज नॉट रियली क्लियर. ठीक है, रिटन वर्ड्स में हैव डिफरेंट मीनिंग्स, डिफरेंट कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स, एंड दे मे हैव डिफरेंट डिमीनर्स, बिकॉज रिटन वर्ड्स है तो उनके पीछे जो लॉजिक है या उनके पीछे जो इंपैक्ट है वो नहीं आता. ठीक है, जब तक वो रिटन में है. बट इफ यू आस्क देम क्वेश्चंस ओरली, नाउ यू मे अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स. ठीक है, तो इसीलिए कोर्ट बोलती है दोनों पार्टी से अपीयर हो, आई नीड टू आस्क क्वेश्चंस. ठीक है, नाउ जब कोर्ट ने दोनों पार्टीज को बुलाकर क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, तो क्या क्या हो चुका है? प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट सबमिट कर दी है, दूसरी पार्टी ने अपना रिप्लाई कर दिया है, दोनों को बुला करके कोर्ट ने बोल दिया है कि यस तुम लोग बुलाओ, और दोनों से क्वेश्चंस भी पूछ चुके हैं. नाउ द कोर्ट अंडरस्टैंड्स व्हाट इज द फंडामेंटल पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज, एंड दैट इज व्हाई द नेक्स्ट स्टेप इज फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज. ठीक है, याद रखना इश्यू फ्रेमिंग में क्या होता है? एक पार्टी एलेज करती है, दूसरी पार्टी डिनाई करती है, उसके बेसिस पर जो क्वेश्चन फ्रेम होता है उसी क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं an issue. ठीक है, where one party asserts, Order 14 Rule 1 actually कहता है issues arise when a material proposition of fact or law is affirmed by one party and denied by the other. Order 14 Rule 1 ये चीज कहता है. तो एक पार्टी जब एलेज करती है, दूसरी पार्टी जब डिनाई करती है, उसके बेसिस पर जो क्वेश्चन फ्रेम होता है उस क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं एक इशू. ठीक है, सो याद रखना प्लेंट में एलिगेशन लगती है, WS में उनका डिनायल होता है, और एग्जामिनेशन में कोर्ट वो एलिगेशन और डिनायल को कंफर्म करती है, एंड देन द कोर्ट फ्रेम्स द इश्यूज. अब इश्यू फ्रेमिंग के बाद हमारा ट्रायल स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, अब हमारी ट्रायल और द हियरिंग स्टार्ट्स. ठीक है, अब ट्रायल में क्या होता है? ट्रायल में बोथ पार्टीज प्रेजेंट देयर एविडेंसेस. ठीक है, ट्रायल में क्या करते हैं? दोनों पार्टीज अपने अपने एविडेंसेस देती हैं. ठीक है, अब प्लेंटिफ अपना एविडेंस देगा, फिर डिफेंड अपना एविडेंस देगा, दोनों ही ओरल डॉक्यूमेंट भी चाहे जैसे भी हो सारे कुछ अपने एविडेंसेस को देंगे, एंड एट द एंड देयर विल बी फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, फाइनल हियरिंग जो होती है, और बेसिकली पार्टी अपना केस समराइज करती है वहां पर, और दोनों के आर्ग्यूमेंट्स वगैरह सुनने के बाद एट द एंड द कोर्ट गिव्स अ जजमेंट व्हिच इज फॉलोड बाय अ डिक्री. ठीक है, देखो अभी जो हम लोगों ने ये टाइमलाइन बनाई है छोटी सी, ये क्या है? दिस इज जस्ट अ बेसिक फ्रेमवर्क, अ वेरी बेसिक वन, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि हम लोगों ने यहां पर नहीं की है. बट देखो इससे होता क्या है, हमारे मन में एक फ्रेम ऑफ माइंड बन गया कि ये होगा तब ये होगा तब ये, तो पहले प्लेन फाइल होगी, फिर ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये. ठीक है, अब देखो द मिस्टेक दैट वी मेक, जब हम लोग को लगता है कि जजमेंट एंड डिक्री आ गई अब सूट ओवर, नहीं, ऐसा नहीं होता. डिक्री पास होने के बाद, कोर्ट का जो डिसीजन आ गया है उसके बाद दो चीजें पॉसिबल है. ठीक है, यूजुअली द विनिंग पार्टी वुड लाइक टू गो फॉर एग्जीक्यूशन, बट द लूजिंग पार्टी जो है दैट वुड लाइक टू गो फॉर अपील, और कैन आल्सो गो फॉर रिव्यू और रिवीजन. याद रखना जनरली यहां पर क्या होता है, वन पार्टी वुड लाइक टू गो फॉर एग्जीक्यूशन, बट द अदर पार्टी वुड लाइक टू गो फॉर अपील और रिव्यू और रिवीजन. ठीक है, सम केसेस जहां पर भी रिवीजन पॉसिबल है.
ठीक है, देखो ये वो टाइमलाइन है जो एक पूरे सूट की एक बेसिक टाइमलाइन है। देखिए इस पे बहुत सारी चीजें, टेम्परेचर जंक्शन वगैरह हम लोगों ने कवर नहीं किया यहां पर, बट बेसिकली एक सूट की जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है वो ऐसे ही होता है। ठीक है, नाउ अब देखो यहां पर ये चीज हम लोगों को बनाना जरूरी क्यों है, ताकि सीपीसी की एक सेंस बने। अब देखो जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया था, दैट वाज सेक्शन ऑर्डर कॉरेस्पॉन्डेंस। हम लोग यहां पर क्या करते हैं, वही सेक्शन ऑर्डर कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वहां से उठा करके और यहां पर फिट कर देंगे उसे। ठीक है, जैसे देखो फाइलिंग ऑफ द प्लेंट इंस्टीट्यूट्स द सूट, तो इसीलिए जब ये पढ़ेंगे तो सेक्शन 26 एंड ऑर्डर 4 ये सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। समन्स के लिए देखो यहां पर समन्स लिखा है, बट थोड़े पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, समन्स के लिए क्या है, सेक्शन 27 to 32 रेड विथ ऑर्डर 5। देखो यहां पर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स सेक्शन 26 एंड ऑर्डर 4। ठीक है, जजमेंट एंड डिक्री सेक्शन 33 ऑर्डर 20। ऐसे ही हमारा एग्जीक्यूशन 36 to 74 ऑर्डर 21। ये जो भी हमारा था सेक्शन ऑर्डर कॉरेस्पॉन्डेंस, इसे हम लोग वहां से उठा करके बस इस टाइमलाइन पे फिट कर देंगे। तो समन्स के लिए हो जाएगा सेक्शन 27 to 32 रेड विथ ऑर्डर 5। देन वी हैव रिटन स्टेटमेंट, दिस इज ऑर्डर 8। Appearance and examination, this is section 89 read with order 9 and 10. Then we have the framing of issues under order 14. Trial is under order 18. Then the judgment and decree, this is section 33 read with order 20. Then you have the execution, this is sections 36 to 74 read with order 21. Then we have appeal, this is sections 96 to 99 read with order 41. Review, this is section 114 read with order 47. And then we have revision, this is section 115. This section does not have a corresponding order. ठीक है, so सीपीसी को पढ़ने के लिए हम लोगों को चाहिए दो चीजें, which is the first is section order correspondence, but याद रखना कि that is not sufficient. Good thing but not sufficient. Why? Because you need to have this timeline in your mind. अगर स्टार्टिंग से ही तुम्हें पता चल गया कि पहले ये होगा फिर ये, सीपीसी की सेंस बनना स्टार्ट होती है। तो ये टाइमलाइन जरूरी है, हमारे मन में वो स्टेप बाय स्टेप पूरी स्टोरी बन जाए कि पूरा प्रोसीजर कैसे फॉलो होता है हमारा। ठीक है, सो टुडे वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन लेक्चर कि सीपीसी को हम लोग पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने थोड़े पहले भी देखा था कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू स्टडी सीपीसी, राइट, इंपॉर्टेंस क्यों थी, राइट, कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या फिर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। और कैसे पढ़ना है वो हम लोगों ने देखा कि पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा सेक्शन ऑर्डर कॉरेस्पॉन्डेंस का, और फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस टाइमलाइन का। तो दोनों का देखो, सीपीसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि देखो अगर मान लो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है, अगेन द प्रोसीजरल लॉ इज गोइंग टू बी सीपीसी। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का केस है, प्रोसीजरल लॉ सीपीसी। हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ में कुछ भी, डिवोर्स मेंटेनेंस कुछ भी केस है, सीपीसी चलेगा। ठीक है, सोगा में अगर आपको राइट्स ऑफ अनपेड सेलर जो है इन्फोर्स कराना है, कैसे करेगा, सीपीसी चलेगा। ठीक है, टॉर्ट में नेग्लिजेंस केस फाइल करोगे तो नेग्लिजेंस के लिए भी आपको सीपीसी में ही सूट फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 19 इज रॉन्ग टू पर्सन। सो याद रखना कि सीपीसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और उसको समझने के लिए दिस इज द प्रॉपर वे टू स्टडी सीपीसी। ठीक है, so this is for today's lecture, and we will continue this topic in other lectures. Thank you everyone. Subscribe for more content.